Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I am your teacher Muhammad Aslan Sati and I am back with another video. So in today's video, we'll be solving the biology MCQs for the entrance test of different medical fields including DPT, BSN, MPH, etc. at Ziauddin University, Karachi and Sakhar campus as well. So the first MCQ is what is the primary function of the rough endoplasmic reticulum? So rough endoplasmic reticulum का क्या प्राइमरी फंक्शन होता है? क्या ये लिपिड सिंथेसिस में यूज होता है? क्या ये प्रोटीन सिंथेसिस में यूज होता है? कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म के लिए यूज होता है या डीएनए रेप्लिकेशन में? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसका पर्पस जो है या जो उसका वो इन्वॉल्व होता है इन द प्रोटीन सिंथेसिस due to the ribosomes attached to its surface. So the next question is, in the context of the genetics, what is epigenetic change? So genetics के अंदर epigenetic change क्या है? So epigenetic change एक ऐसे change को कहते हैं कि जिसके अंदर जीन एक्सप्रेशन की जो मॉडिफिकेशन होती है वो इन्वॉल्व होती है, बट जो उसका अंडरलाइंग डीएनए होता है वो चेंज नहीं होता है. So such a kind of genetic change is known as epigenetic change. So a change in gene expression without altering the DNA sequence. So option B here is the right choice. So moving on to the next question, the process converting mRNA into protein is called. ऐसा वो process जिसमें mRNA जो है वो प्रोटीन के अंदर जो है वो चेंज होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? So mRNA is used to synthesize proteins and this process is known as translation. So ये जो process है ये translation कहलाता है. So next question is the process by which plants make their own food is called. Very easy question. So ये तो आप सबको पता है कि plants अपनी food जो है वो light की मदद से बनाते हैं और इस process को आप photosynthesis कहते हो. So what is the main function of ribosomes in a cell? So the main function of ribosomes in a cell is to राइबोसोम जो होते हैं वो क्या होते हैं? एक सेलुलर मशीनरी हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. सो ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस. So the next question is, which part of the plant is primarily responsible for water absorption? So water absorption plants जो हैं वो अपनी roots के through करते हैं. This was an easy question. So the next question, the genetic material in cell is composed of. So genetic material किससे compose होता है? Proteins, lipids या nucleic acid से, या फिर option D में वो कह रहा है carbohydrates है. So this was an easy as well. So nucleic acids जो हैं वो they are involved in the process of genetic material composition. ठीक है, in cells. So next question, which organelle is known as the powerhouse of the cell? So mitochondria जो है वो adenosine triphosphates बनाता है, ATPs बनाता है. ठीक है, so mitochondria is responsible, it acts as a powerhouse of a cell. So in which stage of the cellular respiration the most ATP produced? So glycolysis में, कब साइकिल में, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेंज या फर्मेंटेशन, किसके अंदर सबसे ज्यादा मेजॉरिटी ऑफ ATPs प्रोड्यूस होते हैं? So majority of ATPs are produced in the electron transport chain during the cellular respiration. So the next one is, the smallest unit of an element is called. So smallest unit of an element is called a molecule, atom, compound or ion. So smallest unit of an element is known as an atom. So which of the following is not a type of RNA? mRNA, tRNA, rRNA या cRNA? So cRNA is the right answer because अभी तक उसको जो है रिकग्नाइज नहीं किया गया था टाइप ऑफ आरएनए, बिकॉज ये प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो इसकी नहीं होती है. विच आर द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स carries amino acid to the ribosome for protein synthesis? So tRNA is responsible. tRNA जो है वो ट्रांसफर आरएनए भी कहलाता है. ठीक है, T stands for ट्रांसफर. सो ये जो है अमाइनो एसिड्स को ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन जो है वो केटर करता है, उनको जो है वो उनकी मूवमेंट करवाता है. सो the bond between amino acids in a protein is called a peptide bond. Again, very easy question. Not only it is related to biology, but it is also a relevant question of chemistry as well. So the next one, which cellular structure is responsible for modifying, sorting and packaging of proteins and packaging proteins for secretion? So गोल्गी ऑपरेटर्स जो है वो प्रोटीन पैकेजिंग, मॉडिफिकेशन और शॉर्टिंग के अंदर जो है वो इन्वॉल्वमेंट होती है उसकी. विच आर द फॉलोइंग इज अ पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज, फ्रुक्टोज या लैक्टोज? सो स्टार्च इज अ पॉलीमर ऑफ सुक्रोज, राइट. सो ग्लूकोज के मोनोमर्स जो है वो क्या करते हैं, उनकी रेपिटेशन होती है, उनकी पॉलीमराइजेशन होती है और स्टार्च प्रोड्यूस होती है. सो व्हाट इज द रोल ऑफ लाइजोसोम्स इन द सेल? सो लाइजोसोम्स का जो पर्पस है या जो रोल है सेल्स के अंदर, वो क्या होता है कि जो सेलुलर वेस्ट होता है उसकी डाइजेशन के अंदर जो है अपना रोल प्ले करते हैं. इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स होते हैं
जो कि सेलुलर वेस्ट को या सेलुलर डेब्री को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। सो इन विच फेज ऑफ द सेल साइकिल डज डीएनए रेप्लिकेशन अकर? सो डीएनए रेप्लिकेशन किस स्टेज के अंदर होती है? G1 फेज के अंदर, S फेज, G2 या M फेज के अंदर? सो डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो सिंथेसिस फेज के अंदर होती है। सो S फेज, ऑप्शन बी हियर इज द राइट चॉइस। सो द पावर हाउस ऑफ द सेल, ये पहले भी रिपीट हो चुका है, माइटोकॉन्ड्रिया इज द पावर हाउस ऑफ द सेल। So moving on to the next one, which of the following best describes an enzyme? So enzyme क्या होता है? एक ऐसा चीज होती है जो कि केमिकल रिएक्शन को, बायोलॉजिकल केमिकल रिएक्शन को जो वो स्पीड अप करता है। सो एक इट्स अ काइंड ऑफ अ प्रोटीन, ठीक है। सो कैटलिस्ट के तौर पे ये ऐड करता है इन बायोलॉजिकल रिएक्शन। सो एंजाइम की डेफिनेशन राइट जो बनती है, ठीक है, वो ऑप्शन ए में ही बनती है। सो व्हाट टाइप ऑफ बायोमोलिक्यूल इज डीएनए? सो डाइऑक्सी न्यूक्लिक एसिड जो है वो किस टाइप का बायोमोलिक्यूल है? सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। सो इट इज अ न्यूक्लिक एसिड। सो डीएनए जो है उसमें जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो कैरी करता है। मैंने साथ आपके लिए ऐड कर दी है इन्फॉर्मेशन। व्हाट इज द फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर इन द इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन? सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर जो है फाइनल इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर जो है वो कौन सा होता है? सो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो ड्यूरिंग सेलुलर रेस्पिरेशन है उसके अंदर फाइनली जो है एज अ फाइनल प्रोडक्ट जो है वो ऑक्सीजन की प्रोडक्शन होती है। सो ऑक्सीजन इज द राइट आंसर। विच आर द फॉलोइंग द प्राइमरी पिगमेंट इन्वॉल्व इन फोटोसिंथेसिस? सो फोटोसिंथेसिस के अंदर प्राइमरी पिगमेंट कौन सा होता है? सो क्लोरोफिल इज द प्राइमरी पिगमेंट, ठीक है, कलर गिविंग बॉडी पिगमेंट कहलाती है। सो क्लोरोफिल इज द प्राइमरी पिगमेंट विच इज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम? सो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का कौन सी चीज जो है वो पार्ट नहीं है? माइटोकॉन्ड्रियाज आर नॉट द पार्ट ऑफ द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम। द बेसिक यूनिट एंड स्ट्रक्चर एंड फंक्शन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो बेसिक यूनिट है इट इज नोन एज सेल। इजी वन। विच प्रोसेस प्रोड्यूसेज आइडेंटिकल सेल्स फॉर ग्रोथ एंड रिपेयर? सो माइटोसिस का जो प्रोसेस होता है, ठीक है, इसके अंदर आइडेंटिकल सेल्स जो है वो प्रोड्यूस होते हैं फॉर द पर्पज ऑफ ग्रोथ एंड रिपेयर। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। Which organelle is responsible for the photosynthesis in plant? Chloroplast, ठीक है, is responsible for the process of photosynthesis in the plant. So this was an easy question. So मैं आपको बताता चलूँ कि ज़ियाउद्दीन की जो मेडिकल साइंसेज का टेस्ट है उसका डिफिकल्टी लेवल विल बी मच ईजियर एज कम्पेयर टू जो आपका MD कैट या M कैट का एग्ज़ाम होता है उससे, या नाम्स का एग्ज़ाम होता है जो नाम्स अपना MD कैट या M कैट लेता है उसके निस्बत इसका बायोलॉजिकल का सेक्शन जो है वो काफ़ी इजी होता है। अच्छा, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता चलूँ कि बहुत से लोग मुझे ये मैसेज करे होते हैं कि जो आपने सिर्फ MCQs करवाए कि हम सिर्फ वही करके जाएँ तो हमारा पेपर हो जाएगा। भाई मैं तो जो MCQs वगैरह अपलोड कर रहा हूँ वो तो आप लोगों की डिमांड पे, अपने एक्सपीरियंस की बेसिस पे, जो प्रीवियस ईयर्स में हमसे लोग ज़ियाउद्दीन की तैयारी करते रहे या इस ईयर की है, सो उसकी बेसिस के ऊपर जो मैं अपलोड करता हूँ। ये कोई बहुत ज़्यादा डिटेल्ड नहीं होते हैं, किसी एक वीडियो के अंदर 40 या 50 MCQs एट मैक्सिमम होते हैं। नो डाउट उनके आने का एक चांस होता है, बट इसके साथ साथ आप अपनी बुक्स में से भी डिफरेंट जो चीज़ें हैं उनको अपनी प्रिपरेशन के लिए जो है वो कवर करें, बिकॉज ऑल द कोर्स ऑफ FSC पार्ट 1 एंड पार्ट 2, चाहे वो बायो का, केमिस्ट्री का या फिजिक्स का, इज इंक्लूडेड इन योर एंट्रेंस टेस्ट। बट एक बात याद रखना, इसका डिफिकल्टी लेवल इज नॉट दैट मच हार्ड ऑल्सो एज कंपेरिजन टू द जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं बाकी आपके पंजाब में या इवन इस्लामाबाद में, उससे जो ज़ियाउद्दीन का मेडिकल साइंसेज, डिफरेंट मेडिकल साइंसेज, इवन चाहे वो MBBS या BDS का ही क्यों ना टेस्ट हो, इन कंपैरिजन वो काफ़ी ज़्यादा इजी होता है। और जो ये बाकी इनकी मेडिकल साइंसेज हैं इसमें उनकी मेडिकल टेक्नोलॉजी है, DPT है, फार्मेसी है, एक्सेट्रा, तो इन सारों के टेस्ट से ये रेलिवेंट क्वेश्चंस हैं। सो नो डाउट आप इनकी प्रैक्टिस करें, इनकी तैयारी करके जाएं, बट दे आर नॉट ओनली कि ये 50 MCQs करके चले गए तो बस मेरे पेपर की तैयारी होगी। सो दिस इज़ अ वेरी, आई मस्ट से कि इज़ अ वेरी चाइल्डिश क्वेश्चन टू आस्क कि जी मैंने तो सिर्फ यही 50 MCQ तैयार करके जा रही हूँ या जा रहा हूँ, तो आप जो है मुझे बता दें कि मेरी तैयारी होगी है कि नहीं। सो मैनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव आस्क्ड मी दिस, सो दिस इज़ अ वेरी चाइल्डिश एंडेवर, राइट। सो थोड़ा सा प्लीज़ ग्रो अप हो जाएं, चीज़ों को आप थोड़ा सा जो है वो लेके साथ चलें, वेल प्रिपेयर होकर एग्जाम में जाएं तो इंशाल्लाह आपका मेरिट पे आने का चांस होगा। और ऐसा भी कतई नहीं होता कि आप सिर्फ पास कर लोगे एग्जाम तो हर एक स्टूडेंट को एडमिशन मिलेगा। जो टॉप टायर में आ रहे होंगे, जो टॉप मेरिट में लिस्ट में क्वालिफाई कर रहे होंगे, उन्हीं स्टूडेंट्स को एडमिशन जो है वो ऑफर किए जाते हैं। So moving on to question number 27, the process which describes the movement of water across selectively permeable membrane. So permeable membrane क्या होता है जिसके अंदर से मूवमेंट हो सकती है, पास हो सकता है। So osmosis is the process, ठीक है, जो पानी का इन या आउट होने का जो प्रोसेस है, दिस इज नोन एज osmosis,
राइट। सो डिफ्यूजन क्या है, मॉलिक्यूल्स का फ्रॉम अ प्लेस ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू अ प्लेस ऑफ लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना डिफ्यूजन है। सो ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन के अंदर फर्क है। सो ऑस्मोसिस इज द काइंड ऑफ डिफ्यूजन आप कह सकते हैं, बट उसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स की इन्वॉल्वमेंट होती है एंड अक्रॉस द परमेबल मेम्ब्रेन भी होती है। विच आर द फॉलोइंग द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स। सो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव अ न्यूक्लियस, prokaryotic cells basically lack a nucleus, they don't have a nucleus. So ये तो ऑप्शन कह रहा है कि have a nucleus. Yes, the right choice is option C, prokaryotic cells lack a nucleus. Which structure in the cell membrane helps to maintain fluidity? So cholesterol जो है वो सेल मेम्ब्रेन के अंदर फ्लूडिटी मेंटेन करने की जो है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो ऑप्शन सी इज द राइट चॉइस। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द केमिकल एनर्जी स्टोर्ड इन फूड इज प्राइमरीली इन द फॉर्म ऑफ एटीपी ग्लूकोज। ग्लूकोज इज द राइट चॉइस हेयर, ठीक है। जो सेल के अंदर एनर्जी होती है, जो केमिकल एनर्जी स्टोर होती है, ठीक है, फूड के अंदर, सॉरी, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। उसके बॉन्ड्स टूटते हैं, एनर्जी रिलीज होती है और बॉडी जो है वो उस वर्क उसको जो है वो कंज्यूम करती है, यूटिलाइज करती है। So which type of bond holds the two strands of DNA together? So हाइड्रोजन बॉन्डिंग है डीएनए स्ट्रैंड्स के अंदर जो है वो नाइट्रोजनस बेसिस के ऊपर, और पेप्टाइड बॉन्ड ये कहलाता है, बट जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ बॉन्डिंग होती है, जो टाइप ऑफ बॉन्डिंग होती है वो हाइड्रोजन बॉन्ड कहलाती है, ठीक है। वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है वो होती है उनके अंदर। विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ फेज ऑफ माइटोसिस। सो प्रोफेज, मेटाफेज, इंटरफेज। सो इंटरफेज जो है का जो है वो माइटोसिस के अंदर नहीं होता, ठीक है, बल्कि बेसिकली ये तो वो फेज है जो कि सेल को द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जो है वो प्रिपेयर करती है। सो विच आर द फॉलोइंग ऑर्गेनेल्स इज इन्वॉल्व्ड इन द प्रोटीन सिंथेसिस। सो राइबोसोम्स आर इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस। ये ऊपर भी से मिलता जुलता एक एमसीक्यू जो है वो गुजर चुका है, सो मैं इसके डिटेल में नहीं फिर जा रहा। विच मैक्रो मॉलिक्यूल इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। डीएनए जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर करता है। न्यूक्लिक एसिड की वो टाइप है, सो आरएनए हो या डीएनए हो, दे आर द टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड डीएनए रिस्पॉन्सिबल फॉर स्टोरिंग द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेसेस अकर्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। तो साइटोप्लाज्म के अंदर जब वो ग्लाइकोलाइसिस का जो है प्रोसेस टेक प्लेस करता है, और जो अदर स्टेप्स होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन के, उनके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस। सो बाय प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस क्या है? सो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है जिसके अंदर प्लांट्स अपनी फूड प्रिपेयर करते हैं यूजिंग सनलाइट, वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। सो ऑक्सीजन जो है एज अ बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है, और ये वजह है कि दिन के टाइम में प्लांट पे सनलाइट प्रोड्यूस पड़ी होती है, तो दे प्रोड्यूस ऑक्सीजन फॉर अस। सो दिस वाज एन इजी क्वेश्चन। विच टाइप ऑफ मैक्रो मॉलिक्यूल इज द मेन कंपोनेंट ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सो सेल मेम्ब्रेन का मेन कंपोनेंट जो है वो लिपिड्स हैं, ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। लिपिड जो है वो फॉस्फोलिपिड जो हैं वो बाय लेयर्स बनाते हैं, डुअल लेयर्स बनाते हैं, ठीक है, इन द सेल मेम्ब्रेन। सो टू लेयर्स बनाते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड पहले भी क्वेश्चंस आज के लेक्चर के अंदर आ चुके हैं। सो एटीपी प्रोडक्शन जो है वो पावर हाउस ऑफ द सेल कहलाते हैं। अगेन ये वही पेपर के अंदर रिपीट हुआ था, लेकिन डिफरेंट वर्डिंग्स के अंदर जो है ये रिपीट हुआ है। विच मॉलिक्यूल इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन। सो ट्रांसक्रिप्शन के दौरान जो है वो मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए जो है वो प्रोड्यूस होता है फ्रॉम द डीएनए टेम्पलेट। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हीमोग्लोबिन इन द ब्लड। सो हीमोग्लोबिन कैरी क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। सो ट्रांसपोर्ट्स ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी वाया ब्लड, ठीक है। सो ये ब्लड का एक ऐसा कंपोनेंट है जो कि ऑक्सीजन कैरियर का रोल प्ले करता है। विच ऑर्गेनल कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम्स टू ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट। सो लाइजोसोम, राइबोसोम, गोल्गी एपरेटस, और राइट आंसर इज लाइजोसोम्स। ये भी गुजरा है, पहले भी गुजरा है कि डेब्री को, डिफरेंट फॉरेन मटेरियल को या वेस्ट मटेरियल्स को डाइजेशन के अंदर सेल्स के अंदर जो है वो डाइजेस्टिव रोल जो है वो ये प्ले करता है। सो डिफ्यूजन ऑफ वाटर अक्रॉस सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। अगेन ये भी रिपीट हुआ है। विच पार्ट ऑफ द सेल साइकिल इन्वॉल्व द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म। सो साइटोप्लाज्म की जो सेल साइकिल का ऐसा कौन सा पार्ट है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म की डिवीजन जो है वो होती है? सो इसका आंसर इज साइटोकिनेसिस, ठीक है। साइटोकिनेसिस इज द प्रोसेस जिसके अंदर जो साइटोप्लाज्म है आफ्टर माइटोसिस जो है वो आपके पास जो है वो डिवाइड होता है। इन विच ऑर्गेनल डज द क्रेब्स साइकिल टेक प्लेस। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्रेब्स साइकिल जो है वो टेक प्लेस करता है, ठीक है, during the process of cell respiration. Which process describes the uptake of a liquid into a cell by engulfing it into cell membrane? So इसका जो आंसर है that is
पाइनोसाइटोसिस ये वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर जो है लिक्विड इनगल्फ होता है इनसाइड a cell by passing its membrane. So which of the following molecules required for active transport to occur? So for the active transport to occur ATP चाहिए होते हैं, एनर्जी चाहिए होती है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया जो है उनके प्रोडक्शन का रिस्पॉन्सिबल है. सो द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स, स्टोर बाइल, एब्जॉर्ब वाटर. सो एब्जॉर्बिंग वाटर इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन. ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन की इन्वॉल्वमेंट होती है. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स. सो राइबोसोम्स जो है प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर इन्वॉल्व होते हैं. व्हाट इज द पर्पस ऑफ सेल्स प्लाज्मा एंड मेम्ब्रेन. सो रेगुलेट व्हाट एंटर्स एंड लीव द सेल. यस, दिस इज द राइट आंसर, क्योंकि सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो परमेबल होती है. ठीक है, और वो रेगुलेट करती है कि कौन सी चीज़ें सेल को एंटर या लीव कर सकती हैं. विच प्रोसेस इन्वॉल्व द ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज टू प्रोड्यूस एटीपी इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन. सो ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसके अंदर ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है, ब्रेक डाउन होता है, और एटीपी यानी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं. सो इसके अंदर जो प्रोसेस है वो ग्लाइकोलाइसिस का. So which of the following structure is responsible for the transport of water in plants? So xylem is responsible for the water transport in plants. What is the term for the process by which plants release water vapor into the air through their leaves? So ट्रांसपायरेशन द प्रोसेस. ठीक है, जिसमें लीव्स के थ्रू जो है वो वाटर वेपर्स एयर के अंदर जो है वो रिलीज होते हैं. सो द फंक्शन ऑफ द रेड ब्लड सेल्स इज टू फाइट इन्फेक्शंस, ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन. So red blood cells are mainly responsible for the carrier of oxygen. ठीक है, transportation of oxygen. So which of the following is not a part of human digestive system? So the next question is which of the following is not a part of the human digestive system? So lungs are not the part of the human digestive system. So liver से जो bile secrete होता है that also plays a part in digestion. So lungs जो हैं उनका digestion के साथ कोई role नहीं है. Which of the following biomolecule is primarily used for long term energy storage in animals? So lipids जो हैं they store energy for later on use. Which organelle is responsible for producing ATP through सेलुलर रेस्पिरेशन. सो ये क्वेश्चन बार बार रिपीट इसलिए हुआ है कि ये लास्ट ईयर के इनके मेडिकल साइंसेज के टेस्ट में बहुत ज़्यादा माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो आए हुए हैं. सो माइटोकॉन्ड्रिया इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एटीपीज. विच टाइप ऑफ आरएनए इज सिंथेसाइज्ड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन. अगेन ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है. सो एमआरएनए इज प्रोड्यूस ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन. Which term describe the ability of an organism to maintain stable internal conditions? So homeostasis जो है is the process of maintaining the internal conditions of the body, जिसमें उसका टेम्परेचर है, ऑक्सीजन लेवल है, एक्सेट्रा, वो सारी की सारी चीज़ों के लिए होमोस्टेसिस जो है वो प्रोसेस जो है वो कहलाता है. सो द नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बायोटिक फैक्टर इन इकोसिस्टम. सो बायोटिक फैक्टर इकोसिस्टम के अंदर जो प्लांट्स जो हैं वो लिविंग हैं. ठीक है, सो दिस इज वाई वो बायोटिक फैक्टर है, क्योंकि टेम्परेचर, लाइट, सॉइल वो इकोसिस्टम की कंडीशन मेंटेन तो करें बट दे आर नॉट बायोटिक फैक्टर. Like, comment, and subscribe.